Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we have discussed about education and symbolic violence. How we can consider that education as a symbol of symbolic violence, that maybe some of hegemonic groups can dominate those of marginalized groups, because with the education, or with the proper sort of knowledge, or with the proper structured or well structured of schools that are already disciplined by the elite classes, they can easily dominate on the other subordinate classes with the help of education. So on this theory, the first of all, Gramsci, Gramsci in 1996, he argues this symbolic violence in his book Prison Notebook. He also contained his thoughts about education in this book. He says that school, in his view of civil society, occupy an important place, leading to the spontaneous consent of the marginalized groups. Or he can say that how can education hegemonize the marginalized groups? He explained in this process by using the term symbolic violence. He termed education as a symbolic violence. Further, he says that according to him, it is through symbolic power that dominant group impose their thoughts, their choices, their instruments, or their preferences on the marginalized groups. The schools, according to the Bourdieu, create a habitus, or create those norms that are imposed on the students in the form of official knowledge. That is, official knowledge are actually synthesized by those dominant groups and are later implemented into the school's pedagogy or in a school curriculum to control those marginalized groups. So that is why this official knowledge is constructed by the dominant group and is always biased in the favor of those dominant interests, because they are capable to favor their interest or into their interest, and they are easily marginalized over those groups that are subordinate them, and they can control over them through the official knowledge that are actually synthesized on their own choices. Secondly, how schools are control the minds of people. Schools are actually the schooling effect control the minds and is helpful in developing a monoculture of minds that are actually synthesized, or actually create those sorts of feelings, or actually can make brainwashings of those students that are actually studied in those schools, who are prepared or who are managed by these dominant groups. And these schools create a monoculture of minds that are actually brainwashed to those students by on the basis of that, on the thinking basis of that, the supreme form of thinking, or they consider that only desirable thinking that they actually want to produce in their minds. Secondly, they can actually suppress or discourage the diversity of language, variety of languages, cultures, religions, knowledge. All these stuffs are actually discouraged by these schools who are actually under the official knowledge of dominant groups. And secondly, they are artificially constructed such a hierarchical knowledge in their developing minds. It is the impact of the schooling on society that received a lot of criticism by an archaeologist name is Illich, Illich, Illich in 1971, in his classical book, that is Deschooling Society. He says that the manifestation of power finds its way in the form of school buildings that are actually just they dominate on these sorts of thinkings of students with the help of their marginalized school buildings
as well as the social class standards, as well as the faculty, as well as the all the things that are associated with schools, with school languages. Because with the help of language, especially with the help of English language, mostly elite schools create such sort of brainwashing to their students, that they can hegemonize on them, or they can dominate on them because of this sort of official knowledge. So it is important to note that how education imparted by different schools is instrumental in constructing and perpetuating the unequal relationship. Because unequal relationships, we can say that a child who have completed his studied from madrasa, on the other hand, a child who have completed his studied in a public school, and the third one who completed his studied from elite English schools, they are completely unequal. There is a completely unequal relationship between thrice of these, because each of them have their own sort of knowledge, have their own sort of critical thinkings, their own sort of aspects to view the world by their own, because that is called the unequal distribution. So secondly, this is called the asymmetrical relationship. We have now discussed about the what is asymmetrical relationship. Now, it is a relationship between powerful and powerless. That is the two classes in our society. One is elite class, one is poor class. Mostly elite class are called powerful class. Those have a lots of capitals, different sorts of capitals. That is, we can say that they have a cultural capital, they have linguistic capital, they have symbolic capital, they have societal capital, they have economically capital. And definitely when they got their education from the elite schools, they will definitely have such a critical thinking about the world, as compared to those people, or as compared to those students who have not enough of resources, or who have not enough of capitals to study in those schools that can actually generate a powerful sort of mind in themselves. So education is engaged in a highly political act of constructing an unequal relationship between a dominant group and between a subordinate or disadvantaged group. So that is according to this, which is these sorts of capital in nature, and some of these dimensions are referred by Bourdieu in 1986 in the form of cultural, social and symbolic capitals. So all these positions are says that these capitals, these form of symbolic capitals, are actually refers to those economic resources that are available to a person on the basis of his or her position. And all these capitals are different constituents and manifestations of the power, and all these capitals are interlinked with each other. The cultural capital, the social capital, the economic capital, the symbolic capital are actually interrelated with each other. A person who have one sort of capital among these, definitely he have other sorts of capital too, because all these capitals are interlinked or interrelated with each other. So it is in this context that quality educations become crucially important, as it enhances one's chances of acquiring these capitals. Because if you have a critical thinking, or you have a critically quality education instead of quantity sort of education, then you will definitely have a capacity to develop such sorts of capitals that I have counted 4 sorts of capitals in front of you. So another related question is, who has more chances of acquiring this quality education? So definitely one of the person who have more access to the person who have more access to the quality education, definitely he have powerful economic resources, and he is rich and also influential and belong to the dominant social group, and he have access to the quality education, as compared to the unequal social relationships or the poor person between the haves and haves nots, who definitely have not enough of resources to develop such a critical thinking in their mind. So next is the quality issue. What is quality issue? Basically in Pakistan,
we are actually focused on our quantitative biases. What is quantitative paradigm? The quantitative paradigm, we are actually look at the aspects of education as on the basis of quantitative paradigm, where we enhanced to increase the numbers. What are increase the numbers? In terms of increasing the numbers of schools, increasing the numbers of students, increasing the numbers of teachers, or increasing the numbers of their salaries. We are actually just consider that all these stuffs are actually related to the education. We says that all these things are important for education, but definitely these are quantitative aspects of education. We need some qualitative aspects of education. So this approach to education focused only on numbers and crushing the evaded the essential political aspects. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ये बात डिस्कस करनी है कि किस तरह पावर का और नॉलेज का आपस में लिंकेज है, कि आप किस तरह नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को बरकरार रख सकते हैं, या आप किस तरह नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए किसी दूसरे की पावर से बाहर निकल सकते हैं। तो इसके हवाले से एक शख्स गुज़रा जिसका नाम था फौकॉल्ट, FOUCAULT, फौकॉल्ट। उसने ना कुछ ये बातें लिखी हैं कि वो कहता है कि वक्त के साथ साथ नॉलेज का और पावर का आपस में जो लिंकेज है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। इनका जो क्राइटेरिया है एक दूसरे के ऊपर वो भी आहिस्ता आहिस्ता बदलता चला जा रहा है। वो ये कहता है कि पावर एक प्रोडक्ट नहीं है, वो कहता है पावर एक चेंजिंग, एक लगातार यानी कि एक बदलने वाला एक रेवोल्यूशनरी प्रोसेस है, जो एक नॉलेज के ज़रिए बाकायदा एक हैगीमनी कंट्रोल किए हुए है। एक डोमिनेटेड क्लास जो है वो नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को बरकरार रख सकती है एक ऐसी मतलब लोगों के ऊपर जो कि तो उनके ताबे फरमा रहेंगे। इसकी एग्जांपल में यानी कि ना वो ये बात कहता है कि किस तरह जब इंडो पाकिस्तान के अंदर यानी कि इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के अंदर जब अंग्रेज़ आए 1810 से 1830 तक, तो उन्होंने किस तरह मतलब इंग्लिश को प्रमोट किया और उन्होंने किस तरह इंग्लिश की ज़ुबान के ज़रिए ही अपनी क्रिश्चियनिटी के मतलब जो मज़हब है उसको भी प्रमोट किया। साथ ही साथ उन्होंने पर्शियन को, बंगाली को और मतलब हिंदी और उर्दू वगैरह इन तमाम ज़ुबानों को उन्होंने ज़्यादा फ़ोकियत दी इंग्लिश के ऊपर, ठीक है, यानी कि इंग्लिश के इन तमाम ज़ुबानों के ऊपर ज़्यादा फ़ोकियत दी। और उन्होंने इस बात को साबित किया कि वो ऐसे लोग पैदा करेंगे जो सिर्फ़ रंग और नस्ल के हवाले से इंडियन होंगे, लेकिन उनकी जो सोच है, उनकी जो मतलब थिंकिंग पैटर्न है, उनकी जो एबिलिटी है, उनका जो टेस्ट है वो सारे का सारा ब्रिटिश जैसा होगा। मतलब उनका रंग जो है वो हिंदुओं जैसा होगा या मुसलमानों जैसा मतलब हिंदुस्तानी होगा, लेकिन उनका जो दिमाग है वो अंग्रेज़ों जैसा होगा। तो यही एक चीज़ होती है कि पावर को इस्तेमाल करते हुए इंसान नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए या लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए बंदा अपनी पावर को बरकरार रखे। फौकॉल्ट इस हवाले से ये कहता है कि फौकॉल्ट डिस्कवर दैट विद न्यू नॉलेज एंड टेक्नोलॉजीज़ न्यू मैनिफेस्ट ऑफ पावर एंड कंट्रोल आर इन्वेंटेड। वो कहता है कि नई किस्म के इल्म के ज़रिए, नई किस्म की टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए नए किस्म के तरीके आ रहे हैं पावर को इन्वेंट करने के, या मतलब पावर को कंट्रोल रखने के नए नए तरीके आ रहे हैं। वो कहता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ट्रेडिशनल वायलेंट फोर्स एंड डिस्ट्रॉइंग द अपोनेंट ऑल टुगेदर, वो कहता है कि बनिस्बत इसके कि आप वही पुराने तरीके अपनाएं कि मतलब अपनी पावर को इस्तेमाल करें और वायलेंट के ज़रिए अपनी अपोजिट फोर्सेस को हटाते चले जाएं। मतलब वो कहता है जुल्म और बर्बरियत की बजाय आप क्या करें कि आप नॉलेज जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मुख्तलिफ़ तरीक़ों के ज़रिए मुख्तलिफ़ स्ट्रैटेजीज़ में इस्तेमाल करें और अपनी कंट्रोलशिप को या अपनी पावर को बरकरार रखें, ठीक है। इन डिसिप्लिन एंड पुनिश, ये उसकी एक बुक है, इन डिसिप्लिन एंड पुनिश, वो फौकॉल्ट इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है। वो कहता है कि किस तरह एक यानी कि ना कंटेम्प्रेरी वर्जन होता है पावर का। वो कहता है इट डिफाइंड हाउ वन मे हैव अ होल्ड ओवर अदर्स। वो कहता है किस तरह एक इंसान दूसरे के ऊपर कंट्रोल रख सकता है, not only so that they may do what one wishes but so that they operate as one wishes with the techniques। वो कहता है कि ये बात ज़रूरी नहीं कि मतलब वो कहता है ये बात भी है कि मतलब they may do that one wishes, कि वो दूसरे लोग ऐसा करें जैसा कि वो पावरफुल बंदा खुद चाहता है, बल्कि साथ साथ दे ऑपरेट एज वन विशेस, वो इस तरह ऑपरेट करें कि जिस तरह उसकी अपनी ख्वाहिश है कि मतलब वो उनको ऑपरेट करवाना चाहता है, एक नई नई मेथड्स और नई नई तकनीक के ज़रिए, ठीक है। 10
discipline produce subjected and practiced bodies. These techniques of knowledge and power were initially used in isolated institutions like prison, factories and schools वगैरह, but later on these techniques were used in other contexts as well. वो कहता है कि ये जो मेथड मैंने आपको बताया है कि नॉलेज को नई नई टेक्निक्स के ज़रिए इस्तेमाल करके आप लोगों से वो करवा सकते हैं जो आप खुद चाहते हैं। तो वो कहता है ये मेथड सिर्फ जेलों के ऊपर या फैक्ट्रीज़ के ऊपर या स्कूलों के ऊपर ही नहीं अपनाया गया। वो कहता है कि इस मेथड का इस्तेमाल, इस तकनीक का इस्तेमाल बाद में बहुत सारी मुख्तलिफ़ जगह पर मुख्तलिफ़ कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से किया गया। ठीक है, आगे वो कहता है कि पावर इज़ नॉट अ प्रोडक्ट बट एज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, इसमें वो ये कहता है अ सर्टेन काइंड ऑफ नॉलेज दैट लीड्स टू न्यू टेक्निक्स ऑफ पावर एंड कंट्रोल। पावर बाय कंटेम्प्रेरी थिंकर्स इज़ नॉट व्यूड एज अ प्रोडक्ट बट एज अ प्रोसेस विच मीन्स दैट इट इज़ नॉट फिक्स्ड आर लोकेटेड इन अ प्लेस। कि पावर सिर्फ एक जगह पे फिक्स नहीं है बल्कि इट इज़ रेदर ट्रांजिटरी एंड फ्लूइड एंड रेशनल इन नेचर। कि मतलब ये एक चेंज होने वाला अमल है, ये वक्त के साथ साथ बदल जाने वाली चीज़ है। ठीक है, अच्छा, दिस व्यू ऑफ पावर इज़ ऑप्टिमिस्टिक। इस हवाले से वो ये बात कहता है, वो कहता है कि पावर इस हवाले से एक ऑप्टिमिस्टिक चीज़ है, मतलब एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है। क्यों? वो कहता है कि मतलब ये कभी भी एक लोकेशन के ऊपर नहीं रहती। वो कहता है कि कभी भी एक पावरफुल इंसान हमेशा पावरफुल नहीं रह पाता, क्योंकि उसे वक्त के साथ साथ डायनामिक्स को समझना पड़ता है, चेंजिंग को समझना पड़ता है। क्योंकि जो पावरफुल है वो एक न एक दिन पावरलेस हो जाएगा, और अगर वो पावरलेस हो गया तो ज़ाहिर सी बात है उससे कोई और डोमिनेट कर लेगा। अगर, क्योंकि वो कहता है कि पावर एक स्टैटिक चीज़ है, वो वक्त के साथ साथ मतलब बदल जाती है, वो डायनामिक चीज़ को यानी कि ना कंसिडर करता है। मतलब वो कहता है कि इक्विलिब्रियम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आहिस्ता 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 एक रेवोल्यूशन लेकर आती है, एक पैदा करती है। इट लुक्स एट पावर एज समथिंग स्कैटर्ड अराउंड अस इन डिफरेंट नेटवर्क्स। अच्छा, अगली बात उसमें ये डिस्क्राइब करता है, वो कहता है कि किस तरह मतलब एक रोबोटिक व्यू जो है वो यहाँ पे पैदा किया जा रहा है। इस पावरफुल नॉलेज और पावर के दरमियान एक फैक्टर को लाते हुए वो कहता है कि किस तरह जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो इसमें इंडल्ज होता है, इन्वॉल्व होता है, और किस तरह वो इन्वॉल्व होकर अपनी एक हैगीमनी को कायम रखे हुए है। अली शराइती SHARIATI, ये एक ईरानियन स्कॉलर और सोशियोलॉजिस्ट था। इसने एक चीज़ डिस्क्राइब की सच एज़ रोबोटिक वर्कर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। वो कहता है कि जो रोबोटिक वर्कर हैं वो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में काम करते हैं। मसलन, ही बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट, सिंपली अ पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर प्रोडक्शन, and his effort is confined to monotonous job which he must do day after day and in doing। इसमें वो ये बात कहता है, वो कहता है कि जो इंसान इस कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर आ जाता है, ही बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट, तो वो एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनता है या एक ऐसा पीस ऑफ इक्विपमेंट बनता है जिसका मकसद सिर्फ कोशिश करना और प्रोडक्शन करना है। वो एक ऐसी मोनोटोनस बॉडी के अंदर के अंडर आ जाता है कि जिसके अंदर रहते हुए वो सेम काम डे आफ्टर डे एंड इन डूइंग वो करता रहता है। सस्पेंड ऑल द करेक्टरिस्टिक्स विच मेक्स अप हिज पर्सनैलिटी, और उसकी पर्सनैलिटी को मतलब इजाफा करने वाले या उसकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने वाले तमाम के तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, आगे वो बात करता है कि शुड टीचिंग बी मेड सो मैकेनिकल दैट द पर्सनल फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी इज़ कम्प्रोमाइज्ड। वो कहता है क्या टीचिंग मेथड को इतना ज़्यादा मैकेनिकल हो जाना चाहिए कि इंसान की जो अपनी क्रिएटिविटी है वही उसकी कंप्रोमाइज़ हो जाए, यानी कि उसकी क्रिएटिविटी, फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी जो है उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ कर दिया जाए। या कैन टीचिंग बी स्टीरियलाइज्ड टू बी एक्सटेंड दैट इट बिकम रोबोटिक्स बेयर फिटेड और एलिमेंट ऑफ पर्सनल रिफ्लेक्शन। मतलब वो कहता है कि इंसान का जो अपना एलिमेंट है पर्सनल रिफ्लेक्शन का, वो इस रोबोटिक एजुकेशन के अंदर इतना ज़्यादा स्टीरियलाइज हो जाए कि वो एक रोबोट की मानद बन जाए, या उसकी सारी की सारी जो क्वालिटीज़ हैं उसकी बॉडी की, वो सारी की सारी जो है वो सस्पेंड हो जाए। आगे वो कहता है अपनी, यानी कि ना एक और इंसान है, एक बंदा है डेविड सॉल्वे जो है वो अपनी बुक के अंदर एजुकेशन लॉस्ट के अंदर वो इसी चीज़ को ही क्रिटिसाइज़ करते हुए, मतलब एजुकेशन को और रोबोटिक व्यू को जो है वो
क्रिटिसाइज़ करते हुए ये बात लिखता है, द रियल टीचिंग इज़ अ मिस्ट्री, अ राइट, अ ड्रामा। वो कहता है कि जो असल टीचिंग है वो एक अजीब सी चीज़ बन चुकी है, एक सेरेमनी बन चुकी है, एक ड्रामा सा बन चुका है, विच पर्पज़ इज़ टू एस्टेब्लिश द कंडीशन in which a kind of transformation can take place in the mind of the students, from monotony to interest, from ignorance to understanding, from rote to memory, from repetition to curiosity, from description to cohesion। वो कहता है कि जो असल एजुकेशन है उससे एक यानी कि सेरेमनी से आगे निकलकर उससे एक ऐसी चीज़ बनना चाहिए जो एक ट्रांसफॉर्मेशन पैदा करे, स्टूडेंट्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन पैदा करे, उनके इंटरेस्ट के अंदर, उनकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर, उनकी मेमोरी के अंदर, उनकी क्यूरासिटी के अंदर, उनके कोहेजन के अंदर, इन तमाम चीज़ों को वो इम्प्रूव करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सच स्ट्रक्चर्ड या रूटीन टीचिंग इज़ अनएबल टू प्रोड्यूस स्टूडेंट्स विद क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। मतलब जिस तरह का कॉरपोरेट कल्चर हमारे माहौल के अंदर पाया जाता है, यहाँ पर अगर यही रूटीन कंटिन्यू रही तो जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं बच्चों के अंदर वो पैदा नहीं हो सकेंगी। जहाँ पर टीचर्स को एक इतना डिस्करेज कर दिया जाता है उनकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी को टीचिंग मेथड के अंदर ही कि उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने स्टूडेंट को इस तरह से बनाएं कि उनका जो मेंटल स्ट्रक्चर है वो आउट ऑफ बॉक्स सोचने से गुरेज करे। मतलब स्टूडेंट्स का जो मेंटल स्ट्रक्चर है वो टीचर्स को फोर्स किया जाता है कि वो इस तरह का डेवलप करें कि उनके अंदर कोई भी जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है वो एक अनवेलकम हो जाए या उसको अनपार्डनेबल, मतलब एक ऐसा गुनाह तस्वर किया जाए उनकी उस थिंकिंग को कि अगर वो ऐसी थिंकिंग लेकर आए तो मतलब एक नामुआफ़ होने वाला उनका ये जो गुनाह है इसको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, दीज टीचर्स प्रमोट अ सोसाइटी डैट इनहिबिट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो ऐसे टीचर जाहिर सी बात है ऐसे लोग पैदा करेंगे जो किसी भी किस्म के ओपिनियन को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, किसी किस्म की डाइवर्सिटी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी किस्म के प्लूरलिज्म को, किसी भी किस्म के क्रिएटिव इनिशिएटिव को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इट वाज दिस फॉर्म ऑफ एजुकेशन दैट वाज क्रिटिसाइज्ड बाय इवन इलिश द बुक डी स्कूलिंग सोसाइटी। इवन इलिश IICHIVAN, इवन एलिश की बुक है डी स्कूलिंग सोसाइटी, उसमें वो इस बात को क्रिटिसाइज़ करते हुए कहता है कि फॉर फेलिंग टू लिबरेट माइंड्स, petrifying individuals and blinding them towards the alternative possibilities। लें जी, अब हमारे अपने कंक्लूजन की तरफ आते हैं। कंक्लूजन के अंदर हम ये बात लिखेंगे कि अगर हम वाकई क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना चाहते हैं, रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, टॉलरेंस की चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं एंड एनेबल अस टू अप्रिशिएट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, तो और अगर हम अपने आप को ऐसा बनाना चाहते हैं कि हम मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स को टॉलरेट कर सकें, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर सकें, वी नीड टू रीविजिट पेडागोगिकल old pedagogical practices and give teachers more academic freedom to exercise their creativity. We need to realize that one-dimensional teaching is bound to produce students with rigid and skewed thinkings। तो आज के लिए इतना ही, अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है कि स्कूल्स किस तरह इंडस्ट्रियल या कॉरपोरेशन से अलग होते हैं, यानी कि स्कूल किस तरह मशीन्स नहीं होते। सबसे पहले मैं आपको एक प्रोफेसर का हवाला दूंगा जिनका नाम है ग्रेथ मॉर्गन, GARETHMORGAN। ग्रेथ मॉर्गन जो है वो एक प्रोफेसर हैं यॉर्क यूनिवर्सिटी टोरंटो के अंदर। उनकी अपनी एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है इमेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अंदर आपने मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप जो है उन दोनों को डिस्कस किया है। साथ साथ आपने ये भी बताया कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशंस के जो डायनामिक्स हैं वो मतलब मदद करते हैं एक न्यू लिबरलिज्म कल्चर को क्रिएट करने के अंदर। ठीक है, आपने इसके अंदर ये बातें बताई हैं कि किस तरह एक जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है या किस तरह एक जो कल्चरल बिहेवियर होता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। वो एक मशीन, एक ऑर्गेनिज़म, एक ब्रेन, कल्चर, पॉलिटिकल सिस्टम, साइकिक प्रिजन, फ्लक्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन और इंस्ट्रूमेंट ऑफ डोमिनेशन के ऊपर वो बेस कर रहा होता है। यानी कि उसका सारे का सारा जो मतलब कल्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो इन तमाम चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन
इस ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम के साथ या इस कल्चरल इंस्टीट्यूशंस के साथ अगर हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी देखें तो हम देखेंगे कि हमारे बहुत सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी बिल्कुल मशीनों की तरह रन कर रहे हैं। ठीक है, एक न्यू लिबरलिज़म ट्रेडिशन के साथ साथ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको भी वो मशीनों की तरह ही कंसिडर करते हैं और मशीनों की तरह ही उनके साथ वो ट्रीट भी करते हैं। डिसीजन मेकर्स और जो मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, वो भी एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन को एक मशीन से ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं देते। वो क्या समझते हैं कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी एक बिल्कुल मशीन की तरह रोज़ाना रूटीनाइज्ड, एफिशिएंट, रिलायबल और एक प्रिडिक्टेबल वे के तहत उनको हम मूव करें या उनको हम कॉरपोरेट कल्चर के ज़रिए उनको हम कंटिन्यू करें। ठीक है, अच्छा, अगर हम पाकिस्तान के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो यहाँ पर भी जो आज का मॉडर्न मॉडल है स्कूल्स का वो भी बिल्कुल इसी तरह बेस कर रहा है जिस तरह मतलब मोस्टली फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या मतलब दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस है बिल्कुल उसी की तरह। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि मतलब एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है ताकि उन यूनिट्स को अच्छी तरह मॉनिटर किया जा सके और उनकी इवैल्यूएशन की जा सके। ठीक है, और साथ साथ इसलिए भी उनको डिवाइड कर दिया जाता है ताकि उनकी जो क्रिएटिविटी होती है उसको एक छोटे से पैमाने के ऊपर जांच पड़ताल भी की जा सके। ठीक है, अच्छा, इस मैकेनिस्टिक व्यू जो है या मतलब ये जो मशीनों वाला जो व्यू है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ, ये एक ब्यूरोक्रेटिक मॉडल भी हम इसे कंसिडर करते हैं। ठीक है, जिसमें एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको एक उस चीज़ से ज़्यादा हैसियत नहीं दी जाती जिस तरह एक बड़ी सी मशीन के अंदर जो एक छोटे से काबले की हैसियत होती है, यानी कि एक छोटा सा जो स्क्रू होता है उसकी जो एक बड़ी सी मशीन के अंदर हैसियत होती है जिसके अपने कोई इमोशंस या अपने कोई आइडियाज़ या अपनी कोई मेथडोलॉजी या अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं होती और उन तमाम चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ करके उसको एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रख लिया जाता है। यानी कि उसने जो भी बिहेव करना है वो एक बाकायदा तौर पर एक मॉडल के तहत उसको अपनी थिंकिंग की इजाज़त नहीं होगी। ठीक है, उसको जो मतलब गाइड किया जाएगा उसने वही आगे भी पहुंचाना, यानी कि एक गाइडेड मिसाइल जिस तरह होता है ना, बिल्कुल टीचर्स भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैसे ही होते हैं। उनको एक यूनि डायरेक्शनल अप्रोच के तहत एक विदाउट क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो उनको अपनी सोच बिल्ड करनी पड़ती है। तो ये तमाम मामलात जो हैं वो इस कॉरपोरेट कल्चर के अंदर पाए जाते हैं। इस किस्म की जो मैनेजमेंट होती है ये बिल्कुल मैनेजमेंट फैक्ट्रीज़ यूनिट्स के अंदर पाई जाती है, जहाँ पर क्या किया जाता है कि ये तमाम चीज़ें इसलिए फैक्ट्रीज़ यूनिट्स के अंदर पाई जाती हैं ताकि वहाँ की प्रोडक्टिविटी और प्रोसीजन और वहाँ की प्रोडक्टिविटी, प्रिसीजन, सुपरवाइजेशन, मॉनिटरिंग और मेजरमेंट जो है वो उसको हैंडल किया जा सके, मैनेज किया जा सके और उसको स्टेबिलिटी के लेवल के ऊपर बरकरार रखा जा सके। ठीक है, अब ये जो मॉडल है ये बिल्कुल कॉरपोरेट सेक्टर का मॉडल है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को एक रोबोट के तहत मैनेज किया जाता है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है इनके अपने आइडियाज़ और इमोशन जो है वो डिवाइड किए गए हैं, यानी कि मतलब DEVOID मतलब उनको सप्रेस कर दिया गया है। अब मॉडर्न टाइम के साथ साथ अगर आप इस चीज़ की एग्जांपल देखना चाहते हैं तो जो फूड चेन्स हैं वो बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर कंटिन्यू होती हैं, मतलब इसी अपनी मैनेजमेंट को एफिशिएंट रखने के लिए वो इसी मतलब मॉडर्न मशीन यूनिट जो है या मतलब ये जो फैक्ट्री मॉडल है इसके ऊपर वो बेस कर रही होती हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये बनती है कि जब इसी कॉरपोरेट मॉडल को या इसी कॉरपोरेट मैनेजमेंट को एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ठोंस दिया जाता है और ये होप की जाती है कि इसके अंदर भी वही एफिशिएंसी, वही मतलब अपना जो फैक्ट्रीज़ वाले रूल्स हैं, रेगुलेशंस जो हैं वो सेम टू सेम ऐसे इसके अंदर भी हम एम्प्लॉय मतलब इसके अंदर भी हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। जबकि हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि जो स्कूल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो फैक्ट्री या कॉरपोरेट कल्चर से बिल्कुल एक डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, उनकी नीड्स अलग होती हैं, अप्रोच अलग होती है, मैनेजमेंट अलग होती है। ठीक है, लेकिन हम वही यानी कि जो चीज़ होती है एक ब्यूरोक्रेटिक एलीट स्कूल्स या मतलब जो बड़े बड़े पैमाने के ऊपर जो स्कूल्स हैं कॉरपोरेट कल्चर को जो फ़रोग देते हैं हम वहाँ भी उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये सारी की सारी अप्रोच जो है मोस्टली एलीट
प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है। यहाँ पर टीचर्स को एक नॉन थिंकिंग ऑब्जेक्ट के तौर पर सामने लाया जाता है, ठीक है, जिसको ये कंसिडर किया जाता है कि वो एक मतलब इम्प्लीमेंटेड इंस्ट्रक्शन जो है, मतलब उसको वही जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे एक सुपर मॉडल या एक टॉप लेवल के ऊपर जो एक इंस्ट्रक्शन बनाई जाएगी वही सेम टू सेम जो है वो थिंकिंग पैटर्न नीचे तक अप्लाई होता चला जाएगा। टीचर्स को वही कुछ करना होगा जो ऊपर से टॉप लेवल के ऊपर उन्हें गाइडेंस की जाएगी, ठीक है, ताकि मतलब किसी भी किस्म की कोई भी टीचर की क्रिएटिविटी जो है वो बाहर ना निकल सके, ठीक है, उसका कोई भी इनिशिएटिव जो है वो ना हो सके और बड़े अच्छे और ख़ूबसूरत तरीके से उसको सप्रेस कर दिया जाए, मतलब बिना किसी लड़ाई झगड़े के उसको उसकी अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को जो है वो सप्रेस कर दिया जाए, ठीक है। अच्छा, दे आर मेड टू रियलाइज़ दैट दे आर नॉट देयर टू थिंक। वहाँ पर टीचर्स को ये बात रियलाइज़ करवा दी जाती है कि ना तो वो सोच सकते हैं, ना ही किसी चीज़ के ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ना ही कोई किसी चीज़ को प्रपोज कर सकते हैं और ना ही किसी किस्म का इनिशिएटिव ले सकते हैं, बल्कि उनको एक कंज्यूमर की तरह एक रोबोटिक मैनर के तहत जो है वो काम करना पड़ेगा उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए। अच्छा, अब इस चीज़ का नुकसान क्या हुआ है? अब वक्त के साथ साथ हुआ क्या है कि जो एंथुजियास्टिक या कॉन्फिडेंस टीचर थे, जो क्रिएटिव थिंकिंग या हैबिट्स को जनरेट अपने अंदर किए हुए थे या मज़ीद अपने स्टूडेंट्स के अंदर भी कर सकते थे, उनका पैशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक रोबोटिक मैनर के अंदर शिफ्ट होता गया। क्यों? क्योंकि एक फ़ियरफुल इन्वायरमेंट के अंदर, एक डर वाले माहौल के अंदर जब उनको लाया गया तो ज़ाहिरी सी बात है इस कॉरपोरेट कल्चर ने उनकी अपनी थिंकिंग को और उनके अपने पैटर्न्स को एक सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर जो है वो उसको दबा के रख दिया। और वहाँ पर जो मैनेजर्स हैं, इन एलीट स्कूल्स की जो मैनेजमेंट है वो इस मॉडल को बड़ा अच्छा समझती है। वो क्या समझते हैं कि इस मॉडल के तहत ये एक बहुत ही सेफ़ मॉडल कंसिडर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि एक सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, ठीक है, और ना ही किसी चीज़ का नीचे से अपोजिंग का डर होता है, मतलब ना कोई आपकी मुखालफत करे, ना ही कोई भी बंदा आपके ख़िलाफ़ कोई पॉलिसी बनाए, ठीक है, और ना ही कोई अपनी आवाज़ें आपके सामने खड़ी कर सके, ठीक है, बल्कि बड़ी खूबसूरत वे के तहत एक आसानी के साथ जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड मॉडल जो है वो एक कोई भी किस्म की पॉलिसी जनरेट करता है और उसको निचले लेवल तक जो है वो इम्प्लीमेंट कर देता है टीचर्स के ऊपर अपना रूप जो है वो जमा के रखने के लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इस मॉडल के तहत एम्प्लॉइज़ को भी और ऑर्गेनाइजेशंस को भी नुकसान हुआ है, ठीक है। दोनों की जो अरेंजमेंट है वो अपनी असलियत को खो चुकी है। कैसे खो चुकी है? एम्प्लॉइज़ के लिए इसमें क्या नुकसान हुआ? एम्प्लॉइज़ के लिए ये नुकसान हुआ कि एक तो उनकी पर्सनल ग्रोथ जो है वो ख़त्म हो गई है, मतलब वो क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। नंबर 1 नुकसान ये हुआ। फिर उनके बहुत सारे जो डेज़ होते हैं, बहुत सारे जो मतलब उनका मोस्टली जो डेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स में गुजरते हैं, मतलब उनको काम इतना ज़्यादा दे दिया जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी को या अपने काम को इंजॉय तरीके से कर ही नहीं पाते। ये तो हो गया एम्प्लॉइज़ के लिए, मतलब अरेंजमेंट जो है वो गलत हो गई। दूसरी है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या नुकसान हुआ। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है मतलब किसी भी किस्म का इंटेलिजेंट या इनिशिएटिव या मतलब हम कह सकते हैं क्रिएटिव जो कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉइज़ की तरफ से वो ख़त्म हो गया, ठीक है, जो कि एम्प्लॉइज़ जो है मतलब एक डिसीजन मेकिंग बॉडी के तहत जो कैपेबल थे, मतलब इस काबिल थे कि वो अपने मशवरे वगैरह देते और ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर लेकर जाते, वो सिलसिला ख़त्म हो गया, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन को एक राइट अपॉर्चुनिटीज़ मिलना जो है वो बंद हो गई। इस कॉरपोरेशन कल्चर के ज़रिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के ये 2 नुकसान हुए। अब आगे क्या है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू हैव एन ओपन इन्वायरमेंट ऑफ लर्निंग। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए ये बात ज़रूरी है कि वो एक ऐसा माहौल पैदा करें जिसके अंदर लर्निंग हो, जिसके अंदर थिंकिंग हो, जिसके अंदर तमाम के तमाम अफेयर्स को बाकायदा तौर पर मैनेज किया जा सके, या हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पैदा होने चाहिए जहाँ पर टीचर्स को एकेडमिक फ्रीडम होनी चाहिए, मतलब वो उनको सोचने की अहलियत देनी चाहिए। क्या ये चीज़ें ज़रूरी हैं? अब इस चीज़ के आंसर के लिए, इन दोनों सवालों के जवाब के लिए 2 किस्म की अप्रोचेज़ हैं। एक रॉन्ग अप्रोच है, एक पॉजिटिव अप्रोच है, ठीक है। पहले हम रॉन्ग फ़िलासफ़ी की बात करते हैं जो कि एजुकेशनल नीड के मुतल्लिक़, या मतलब एजुकेशनल फ़िलासफ़ी जो रॉन्ग एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है। रॉन्ग एजुकेशनल फ़िलासफ़ी क्या कहती है? वो ये कहते हैं कि मतलब इफ़ द मैनेजमेंट बिलीव्स दैट,
अगर मतलब एक रॉन्ग पॉलिसी के तहत या एक रॉन्ग एजुकेशनल पॉलिसी के तहत या एक रॉन्ग एजुकेशनल फ़िलासफ़ी के तहत मैनेजमेंट ये समझे कि एजुकेशन का फंक्शन क्या है कि ऐसे लोग पैदा करना जो सोसाइटी के स्लॉट्स के अंदर फिट हो जाएं, मतलब सोसाइटी की या मार्केट की जो नीड है उसके अंदर वो फिट होने चाहिए, अगर तो उनकी ये सोच है तो मतलब देन द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड इज़ न्यूट्रल, और उनको मतलब ऐसे लोग पैदा करने हैं जो मार्केट जॉब के लिए बिल्कुल फिट हों और मतलब किसी भी किस्म का वो अपने अंदर डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करना चाहते, वो बल्कि एक न्यूट्रल ए पॉलिटिकल यूनिडायरेक्शनल एक अप्रोच चाहते हैं जिसमें टीचर जो हैं वो एक एक्टिव के तौर पर नहीं बल्कि एक पैसिव वर्कर के तौर पर सामने आए। ठीक है, ये तो हो गई रॉन्ग अप्रोच। अब बात करते हैं पॉजिटिव अप्रोच की। अगर मैनेजमेंट ये समझती है कि मतलब उनको ऐसे लोग पैदा करने चाहिए या मतलब एजुकेशन का मकसद ये होना चाहिए कि हमें वो लोग पैदा नहीं करने कि जो मार्केट के अंदर या सोसाइटी के अंदर फिट हों, बल्कि हमें वो लोग पैदा करने होंगे जो एक बाकायदा तौर पर क्रिटिकल थिंकिंग, एक उनके अंदर एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस होनी चाहिए जो कि इनको इस हद तक एनेबल करे कि वो अपने सीखे हुए इल्म को अप्लाई करें मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। अगर तो उनकी ये सोच है तो उनको ये सोच जो है वो एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन मूड की तरफ ले जाएगी। ठीक है, फिर उनकी ये कोशिश होगी कि वो न्यूट्रल नहीं बल्कि एक हर एक के लिहाज से मतलब तमाम लोगों को एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक बंदे की क्रिएटिव थिंकिंग को और क्रिटिकल अप्रोच को बिल्ड करेंगे और एक इफ़ेक्टिव टीचर मैनेजमेंट और एक इफ़ेक्टिव स्टूडेंट्स जो है वो उस चीज़ को सामने लेकर आएंगे। तो ये तो है मतलब पॉजिटिव फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन। अच्छा, अब बात करते हैं कि मतलब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक पॉजिटिव फ़िलासफ़ी को इम्प्लीमेंट करने के लिए किस चीज़ की हाजत है। इस चीज़ में बहुत सारी जो रिसर्च है वो एक रिक्वायर है। रिसर्च किस हवाले से रिक्वायर है? रिसर्च इस हवाले से रिक्वायर है कि जो एक नेगेटिव पैराडाइम शिफ्ट को या मतलब एक हाईली नैरो एक शिफ्ट जो होता है उस वहाँ से मतलब हमारी सोच को उठाए और एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट पैदा करे जो एक ब्रॉडर हॉलिस्टिक व्यू ऑफ स्कूल डेवलपमेंट हमारे अंदर डेवलप करें। यानी कि एक स्कूल एजुकेशनल सिस्टम के हवाले से एक नेगेटिव अप्रोच से एक ब्रॉडर और पॉजिटिव अप्रोच की तरफ हमें लेकर जाएं। इस चीज़ के लिए बाकायदा तौर पर एक रिसर्च रिक्वायर है। ठीक है, जहाँ पर जो है टीचर जो हैं वो एक ऐसे मतलब उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए कि मतलब जहाँ पर टीचर्स की डेवलपमेंट होनी चाहिए, जहाँ पर इंडिविजुअल्स की डेवलपमेंट होनी चाहिए, जहाँ पर स्कूल जो हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत तमाम की तमाम चीज़ें एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि स्कूल, टीचर, उनकी डेवलपमेंट, उनका इंडिविजुअल माहौल जो है वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होना चाहिए। इस चीज़ के लिए मज़ीद आगे क्या रिक्वायरमेंट है? इस चीज़ के लिए सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट ये है कि अपना जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशन की बजाय एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कन्वर्ट होना पड़ेगा। सबसे पहले ये बात। नंबर 2 के ऊपर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो वहाँ के टीचर्स हैं उनको एक स्टेक होल्डर का यानी कि दर्जा दिया जाए। यानी कि इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर या इस एजुकेशनल सिस्टम के अंदर, एजुकेशनल डेवलपमेंट सिस्टम के अंदर जो टीचर्स हैं उनको बाकायदा तौर पर एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर का दर्जा मिलना चाहिए, यानी कि उनकी बात को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, नंबर 3 के ऊपर उनको ऐसे मौके या ऐसी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए जो उनकी प्रोफेशनल और इंडिविजुअल डेवलपमेंट कर सकें, यानी कि टीचर्स की। नंबर 4 के ऊपर इंस्टीट्यूशन जो है उसको बाकायदा तौर पर एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होना चाहिए, यानी कि उसको एक बाकायदा तौर पर जिसे हम कहते हैं ना कि मतलब शमा होनी चाहिए, इल्म की शमा, यानी कि बाकायदा तौर पर उसको एक सामने बन के आना चाहिए। नंबर 5 के ऊपर है कि हमारा जो कुरिकुलम है, ठीक है, जो हमारी पेडागॉगी है वो बाकायदा तौर पर रिसर्च बेस और इवैल्यूएशन बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, ये नंबर 5 के ऊपर है। नंबर 6 के ऊपर है कि जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ऐसा माहौल डेवलप करना चाहिए जो कि एक बाकायदा तौर पर एक शेयर डिसीजन मेकिंग लेकर आएँ, यानी कि एक ऐसा माहौल या एक ऐसा कल्चर सामने लेकर आएँ जहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग हो वो शेयर हो, मतलब हर एक टीचर्स को अपनी राय देने का होकर, जो जहाँ पर मीटिंग्स हो, जहाँ पर डायलॉग्स हो, जहाँ पर हर एक टीचर की जो बात है वो मतलब सामने लेकर आई जाए, उसको प्रेफर
फ़ख्र किया जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए, ठीक है, इस चीज़ को पॉसिबल किया जाए, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस चीज़ को पॉसिबल करें। नंबर 6 पॉइंट हो गया। अब 7वें ऊपर ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मैनेजमेंट है वो इस चीज़ को रियलाइज़ कराए दैट क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट्स आर यूज़फुल फॉर द ग्रोथ ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन, कि मतलब किसी भी किस्म के जो क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मतलब इनोवेटिव कॉन्फ्लिक्ट, मतलब एक रिसर्च बेस्ड माहौल स्कूल के अंदर भी पैदा होना चाहिए। मतलब स्कूल बजाते खुद एक ऐसी लैब होनी चाहिए जहाँ पर एक रिसर्च बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो क्रिएट हों और वहाँ से फिर जो चीज़ें निकल के आएँ उनको स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इम्प्लीमेंट करे, ठीक है। नंबर 8 के ऊपर जो है वो कॉन्शियस एफर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए जहाँ पर टीचर जो हैं वो अपनी जॉब से यानी कि जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई हो सकें, उनको बाकायदा तौर पर इतनी पे मिलनी चाहिए कि वो एक बाकायदा एक मीनिंगफुल अप्रोच और एक सेटिस्फाइड अप्रोच जो है वो उसको हासिल कर सकें, यानी कि वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई हों। और सबसे आखिर में दिस सेंस ऑफ पर्पस मेक्स वन टास्क मोर इंजॉयबल एंड वैल्यूएबल। अगर आप ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पर बाकायदा तौर पर एक इंजॉयबल माहौल और एक वैल्यूएबल माहौल जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। और इस माहौल के तहत, इस एटमॉस्फेयर के अंदर जो एक क्रिएटिव टीचर है वो क्रिएटिव स्टूडेंट और एज़ वेल एज़ क्रिएटिव सिटीज़न जो है वो हमारे माहौल के अंदर पैदा करने की कोशिश करेगा। तो इतना ही, अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए। अस्सलाम वालेकुम।